Hello, 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 kids. A very warm welcome in the amazing platform of Physics Wala Design and Architecture. I hope you all are doing good, great, and very well. And a very good evening to everyone. ये session start करने से पहले, as you have this first session with me today, ठीक है? तो I would like to have a little bit introduction from you guys, and the question which I want to ask from you is which college you are aiming at and why designing. थोड़ा सा हम लोग आज ये जानते हैं कि क्यों डिजाइनिंग आप लोग कर रहे हैं और कौन सा कॉलेज ऐसा है जो आप एम कर रहे हैं, एनी पर्टिकुलर कॉलेज. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन इफ यू गाइस कैन जॉइन द जूम लिंक फास्ट. प्रशांत, ये पिन कर दे. एक और चीज, देखो मैं बताती हूँ. मेरे क्लास में ना थोड़ी सी हम शर्म हया थोड़ा साइड में रखेंगे. रीजन भी कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आपको आगे कॉलेज के लिए भी, अगर इंटरव्यू होता है उसके लिए भी. तो इंटरव्यू में ऐसे होता है आपका, ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक राइट. कॉलेज में आप जाएंगे तो ज्यूरी आपकी होने वाली है. ज्यूरी के बारे में अगर नहीं पता है तो आई विल बी टेलिंग यू, बट expressing yourself is the first thing which you can have to gain the confidence. So my question is, why you wanna be a designer or why you wanna do designing? देखो, ओरिएंटेशन में ना हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि पहले ही दिन मैं आपको कलम कॉपी किताब दे दूं एंड आई आस्क यू गाइस कि आज के आज ही आपको ड्रॉ करना है. आई हैव टू प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग क्लासेस एज वेल. सो प्रायर टू दिस, यस मैम, मैं नीट एस्पायरेंट था, फिर मेरा मूड बदल गया और मैंने डिजाइन चूज करा. ओके, व्हाई डिजाइनिंग गाइस? I don't want to call out the name, just choose yourselves to give the answer first. फटाफट से post that, I'll start this. आगे की क्लास में ये नहीं होने वाला है. We are gonna dive into the chapters and all the learning of the designing, but prior to that we have to be mentally prepared for this thing as well. We have also met before, Shantanuj. Yes, Shantanuj, I think we had a word. My name is Jenny. Hi, Jenny, and I'm from Design Pro batch, and I want to prepare for the NIFT and NID because from my childhood I have been interested in design, sketching, fashion, etc. So I want to make career out of it, okay? Because it's my passion. I want to get into the communication design. Hello, ma'am. My name is Nehi. Great. And I'm preparing for design because I have great interest in it since beginning. So I think I can do good in this field. Riddhi from Infinity. Hi, Riddhi. I'm interested in fashion communication as I enjoy fashion trends, marketing, journalism, and photography. I love creative designs. चलिए, I like to solve the problems of daily life. ठीक है, हमने सबने सोचा कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है ना, ये सब. बट what does a designer do? My second question is this. What do you guys think? What does a designer do? I love decorating rooms. Okay. I want to learn further in design language and get into NID animation masters course. ठीक है. Solve the problems. Hmm. What does a designer do? Tell me. Fast. So basically, अगर बोला जाए, in a nutshell में बोलूं, a designer makes the life easier, है ना, by solving any kind of problem, right? अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यहाँ पर आ गया, लेकिन हमने देखा है कि एक तरह का जुगाड़ भी होता है. ठीक है, वो चलते फिरते फिरते जुगाड़ भी हमने देखे हैं. सो जुगाड़ और डिजाइन में फर्क क्या है? एनी आइडिया? लाइक सॉल्विंग द ह्यूमन नीड्स टू क्वालिटी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, आपने
सॉल्व करा प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन जुगाड़ के जरिए से भी तो आपको लगता नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मम्मी ने बॉर्नवीटा के डब्बे में दाल भर के रख दी, दैट इज ऑल्सो जुगाड़, है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम विच इज बीइंग सॉल्व्ड ओवर देयर। सो व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द डिजाइन एंड द जुगाड़? वर्क ऑन एस्थेटिक एज वेल, ठीक है, experience and creativity, inventing new things. Designer blends art with functionality. Great. What else? Jugaad is temporary, for a new design would last for longer time or even permanently. Great. This is what I was waiting for. So basically, your design is for your jugaad is for a shorter period of time. ठीक है, डिजाइन इज फॉर लॉन्गर पीरियड, जिसमें कि आपका फॉर्म और फंक्शनैलिटी दोनों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। फॉर्म मतलब कि दिस थिंग, द 3D शेप ऑफ इट, ठीक है, फंक्शनैलिटी कैसे वो चीज काम करने वाली है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लेकिन अगर मैं नटशेल में बोलूं कि आपका जुगाड़ भी एक बिगर अम्ब्रेला डिजाइन के अंडर में ही आता है, ठीक है, आपका जुगाड़ भी डिजाइन के अंडर में ही आता है। मुझे ये बताइए, जब पहले पहले अभी आप लोगों ने MRF का टायर देखा है? हैव यू सीन द टायर ऑफ MRF? यस, मतलब कोई सा भी टायर बोल दो, अभी MRF तो मैंने बस एक नाम लिया। वो डिजाइन है कि वो जुगाड़ है? दैट्स अ डिजाइन, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो वो डिजाइन है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो पहले पहले समय पर एक पहिया बनाया गया था, है ना, ताकि लाइफ को आसान कर सके, ताकि एक चीज को आसानी से दूसरी तरफ कैरी कर सके, जो आपका पत्थर से बना था, वो जुगाड़ था कि वो डिजाइन था? दैट वाज बेसिकली अ जुगाड़ और अ डिजाइन? Some of you are saying design and some of you are saying jugaad. How come that was design and how come that was a jugaad? जो पहले पहले आपका यहाँ पर पहिया बनाया गया था किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कहीं पर इजीली कम्यूट करने के लिए, क्या वो जुगाड़ में आएगा या फिर वो आपका डिजाइन में आएगा? That is basically, yes, that is basically your jugaad. That was not for a shorter, for a longer period of time. The aesthetics were not kept in mind when they were designing that thing. ठीक है, बट कहीं कहीं पर यहाँ पर ये भी चीज हुई है कि हमारा जुगाड़ लास्ट में एक डिजाइन बन गया है। The problem solving starts as a जुगाड़ and later on that turns into a design। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, स्टार्ट होता है हमारा जुगाड़ की तरह से और वो बाद में आपका एक डिजाइन बनता है। ठीक है, यस, पहले जुगाड़ देन डिजाइन। ग्रेट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो माय नेम इज साक्षी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, एज यू ऑल कैन सी, I have done my designing from NID. I have taught in NID as well and I have been mentoring students since past few years. ठीक है, इसके साथ साथ आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज वेल, एंड ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर। अगर आपको मेरे बारे में कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यहाँ पर मैं हमेशा अपने बच्चों को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज क्लास में क्वेश्चंस पूछिए, सवाल पूछिए, और जब तक आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं होगा वाई, ठीक है, वाई, तब तक आप यहाँ पर क्यूरियस नहीं होंगे। डिजाइनर हमेशा क्यूरियोसिटी चाहता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नहीं होगी, हो गया मिल गया। सो ओरिएंटेशन ही मैं यहाँ पर आज देने वाली हूँ आप लोगों को, रीजन बीइंग कि एक बार हमारा क्लैरिफिकेशन हो जाए, इसके बाद इस ओरिएंटेशन के बाद अगली क्लासेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बेसिक क्लासेस ऑफ द
चैप्टर्स। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, और यहाँ पर मुझे तभी रोक कर आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, इस बार एनआईडी ने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। कितने बच्चों को ये चीज पता है? हुआ क्या इस बार, कि एनआईडी ने आपका जो गैट वाला पोर्शन होता है, देखो इसमें दो पार्ट आते हैं, गैट एंड कैट। ठीक है, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्रिएटिव डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, सीडीएटी, या उसको सीएटी भी बोल दिया जाता है। तो इस बार एनआईडी ने क्या किया कि पूरा का पूरा आपका गैट पोर्शन हटा दिया। इस तरह की चीजें, इस तरह का रोलर कोस्टर राइड आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा। तो मैं आपको शुरू से ही यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर करके चल रही हूँ कि ये पूरी की पूरी जो आपकी जर्नी होने वाली है, ये आपका पीस ऑफ केक नहीं होने वाला है। देयर गोना बी अप्स एंड डाउन्स एज वेल। कहीं पर ये भी होगा कि हो सकता है ह्यूमन अनाटमी में प्रॉब्लम आए, बट यस, यू आर अ डिजाइनर एंड यू आर एन एस्पायरेंट, तो आप लोग को सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढना होगा। ठीक है, गेट वॉज डिलीटेड, अरे खत्म, टाटा बाय बाय, धप्पा मारा गया था गेट द्वारा, बिल्कुल। चलिए, एक बार कोर्सेज की बात हम लोग कर लेते हैं। एज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉलेजेस, कौन से कोर्सेज यहाँ पर केटर होते हैं। निफ्ट की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। कोर्सेज आपके निफ्ट जो यूजी के लिए केटर करता है, अभी टोटल कैंपस यहाँ पे 19 हो गए हैं। वो है बीडेस, बैचलर्स इन डिजाइनिंग, बीएफ टेक, बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मास्टर्स में होता है मास्टर्स इन डिजाइनिंग, एमएफएम। ठीक है, मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट, और उसके साथ एमएफ टेक, मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, और आपका पीएचडी भी यहाँ पर है, जो कि आपका लेटर ऑन, जिसमें आप थीसिस लिखते हैं, वो भी आपका यहाँ पे निफ्ट केटर करता है। मैम नेक्स्ट ईयर भी पैटर्न चेंज होगा या इस साल की तरह रहेगा? बेटा बिल्कुल, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। ठीक है, कैसे अनप्रिडिक्टेबल, कि ये पोर्शन ज्यादा कर दिया, ये पोर्शन कम कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर ज्यादा कर दिया, ये कम कर दिया। यूसीड ने पिछले साल क्या किया था, जीके के क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे। एनआईडी साल क्या किया है, गैट बिल्कुल हटा दिया है। तो ये पोर्शन वाइज दे डू प्ले। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चंस बिल्कुल चेंज कर दें, है ना, कि मैथ्स का क्वेश्चन आना था, अब यहाँ पर हमारा कोई और सा संस्कृत का क्वेश्चन दे दे, ये नहीं होगा। पोर्शन के साथ दे आर गोइंग टू प्ले। ठीक है, होगा ये, अगले आने वाले सालों में भी होगा, लेकिन जो हम डिजाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैम कैन आई वॉच दिस इन ऐप? बच्चों, एम आई ऑडिबल? आई एम सो सॉरी। हेलो हेलो हेलो। ओके, जूम लिंक, चलो, जूम लिंक बच्चे, जितने बच्चों को नहीं मिला है, आप जाइए माय बैचेस में, जाइए वहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन में, जाइए वहां पर आपको जूम लिंक मिलेगा, देयर यू कैन फाइंड द लिंक। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज, हैव यू गॉन थ्रू दिस अर्लियर एज वेल और नॉट? नहीं, अभी आपने नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद डिसिप्लिन हमारे जो निफ्ट में है वो है फैशन डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, एक्सेसरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, नेटवेयर डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन एंड मोर। ठीक है, एंड मोर में जिसका भी बच्चे माइक ऑन है, प्लीज एक बार उसको ऑफ कर दीजिए। राइट, अब इसमें क्या होता है कि आपका एडमिशन के बाद, जैसे एडमिशन हुआ तो आपको फर्स्ट ईयर से ही अपना यहाँ से स्ट्रीम चूज करना होता है कि आप कौन सा डिजाइन करने वाले हैं। अनलाइक योर एनआईडी, एनआईडी में पहले साल फाउंडेशन ईयर होता है, उसमें सब लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में आप अपना कौन सा स्ट्रीम होने वाला है वो चूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ईयर में सब कुछ आपको ओवरव्यू करवाया जाता है, उसके बाद बच्चे को समझ में आता है कि वेदर दे आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स टेक्सटाइल डिजाइनिंग,
प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग और व्हाट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में आप लोग चूज करते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस यहाँ पर है कोर्स के अलावा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इन योर निफ्ट एंड एनआईडी। सीट्स जो है आपकी यूजी में अप्रोक्सीमेटली 3270 हैं, पीजी में 1034 अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं। एज लिमिट जो आपकी रहेगी यूजी के लिए 24 साल रहेगी और पीजी के लिए आपका कोई भी यहाँ पर बार नहीं है। यस आराध्या, व्हाट इज द डाउट बेटा? Ma'am, I was asking that हम्म। is it compulsory to join from the Zoom link or we can like just watch from the app? इट इज नॉट कंपल्सरी। ये आज अभी आपको लग रहा है कि जूम इज नॉट यूजफुल। आगे आने वाली क्लासेस में क्या होगा बेटा कि आप लोग ना अपना काम यहाँ पर भेजेंगे। ऐप में यू कांट अटैच योर वर्क, ठीक है, जो फोटो होगा काम का। तो दैट इज वाई फॉर द बेटर कम्युनिकेशन सो दैट आई कैन सी द वर्क एज वेल, जूम इज अ प्रिफर्ड प्लेस सो दैट यू कैन अटैच योर इमेजेस ओवर हियर। अभी अभी अगर आपको लग रहा है कि Okay, आप ऐप ma'am. में देख सकते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली स्विच टू ऐप, देयर इज नो कंपल्शन फॉर दैट। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, ओके। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? यूजी में बीडेस के लिए अगर अगर आप अप्लाई करने वाले हैं निफ्ट में, ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, ट्वेल्थ अपियरिंग या फिर ट्वेल्थ पास। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। अगर आप बी एफ टेक का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास यहाँ पर बीसीएम होना जरूरी है। पीजी के लिए यूजी डिग्री हो या फिर यूजी डिप्लोमा 3 साल का हो फ्रॉम निफ्ट एनआईडी एक्सेट्रा। उसके साथ अगर आप एमएफ टेक, बीएफ टेक, बीटेक या फिर बैचलर्स इन एजुकेशन भी आपका यहाँ पर एड ऑन हो सकता है। पेपर लैंग्वेज आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी, दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपका जो पहला पार्ट होगा निफ्ट में वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका पेन और पेपर बेस्ड होगा। शुरू का जो आपका 2 घंटा होगा उसको 2 घंटा बीडेस के लिए, 2 घंटा गैट पार्ट के लिए होगा, बीच में ब्रेक आपको मिलेगा, और 3 घंटा आपका ड्राइंग पार्ट के लिए आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये आपके जनरली जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख है, बट इसको आप मोटा मोटा ही समझिए, क्योंकि हमने देखा है हर 2 या 3 साल में आपकी फीस बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी फीस अपकमिंग ईयर्स में बढ़ा दी जाए। अपियर्ड स्टूडेंट्स 40,000 के आसपास बच्चा अपियर करा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इसमें आप कितनी भी बार 24, अगर आप यूजी का एग्जाम दे रहे हैं 24 साल के अभी तक नहीं हुए हैं तो आप कितनी भी बार अपना ये एग्जाम दे सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, दिस एग्जाम इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। प्लेसमेंट्स जो आपका 5 to 6 lakhs इज एवरेज पर एनम, ठीक है, इससे ज्यादा भी जाता है। मैम मेरा तो ग्रेजुएशन भी हो चुका है मेडिकल में, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? चलो कोई बात नहीं, वो हम बाद में आते हैं इस पर। हाउ वाज द एक्सपीरियंस बेटा मेडिकल में? व्हाट यू हैव डन, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, व्हाट? ओके, एक बार आप बता दें, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी आपका एज, आर यू अपियरिंग फॉर बीडेस, बीएफ टेक और मास्टर, मतलब यूजी और मास्टर्स बचे? स्मृति एक बार माय बैचेस में जाके बेटा अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, देखिए वहां पर जूम लिंक होगा। ओके, पेपर पैटर्न में आपका कैट 50% होता है, गैट जो है उसका 30% आपका यहाँ पे परसेंटाइल लिया जाएगा, सिचुएशन टेस्ट का 20% यहाँ पर लिया जाएगा। पेपर पैटर्न फॉर बीएफ टेक, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ गैट पार्ट रहेगा, आपका ड्राइंग नहीं रहेगा। अगर आप इस साल 11th में हैं, आप अगले साल तो 12th में आएंगे ना बेटा, 2026 में आप 12th में रहेंगे ना। अभी इस साल आप 11th के एग्जाम दे रहे हैं राइट, जनवरी फेब में आप दे सकते हैं। अब जब आपका 2026 में देखो 12th अपियरिंग या फिर 12th पास, ठीक है, यूसीड के लिए
ट्वेल्थ अपियरिंग और ट्वेल्थ पास, बट दो कॉन्जिक्यूटिव, दो एक साथ साल में आपको देना होगा ये एग्जाम। तो इस साल जो आने वाला साल है उसमें डेफिनेटली आप दे सकते हैं ये एग्जाम। ओके। पेपर पैटर्न फॉर पीजी, सीएटी 40% एमडेस का है, गेट 30%, जीडीपीआई आपका पर्सनल इंटरव्यू 30% का वेटेज ये रहने वाला है। अब आते हैं हम एनआईडी के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एमिंग फॉर एनआईडी? मैम प्लीज अगली क्लास 4 बजे करना, 3 बजे स्कूल रहता है सबका, प्लीज। बच्चे ये ना क्लासेस हम लोगों ने जो स्केड्यूल डिजाइन किया है ये अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किया है ताकि कन्वीनियंट रहे आप लोगों के लिए पोस्ट स्कूल, क्योंकि आपकी और क्लासेस भी दिन में होने वाली हैं, राइट? 10th से बोर्ड हैं, 12th के। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू डू द बेस्ट इन योर एग्जाम्स बेटा। बढ़िया करना, ठीक है, टेंशन कोई सी नहीं लेनी है। मैं हमेशा एक चीज अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हर चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो ऊपरी हिस्सा है इसका संतुलन बनाए रखना, मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। 5 कैंपस हमारे इन टोटल है। मदर कैंपस जो है हमारा वो अहमदाबाद में है, जो सबसे पहले आपका चार्ल्स और रेम्स द्वारा शुरू करा गया था। उसके बाद 2015 में जो शुरू करा गया वो शुरू करा गया आपका कुरुक्षेत्र। 2016 में जो शुरू करा गया था, सॉरी 2015 में आंध्र प्रदेश, 2016 में आपका कुरुक्षेत्र शुरू करा गया, और उसके बाद आए आपके जोरहाट और एमपी। ठीक है, इस तरह से 5 कैंपस हैं आपके यहाँ पर। देन यू हैव द डिसिप्लिन्स लाइक इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, अपैरल डिजाइनिंग। आपके कुछ कैंपस में टेक्सटाइल और अपैरल दोनों साथ साथ है। लाइफस्टाइल डिजाइन, एक्सरी डिजाइन, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, और यहाँ पर आपका इसके साथ साथ बाकी कोर्सेज भी हैं। ठीक है। सीट्स आपकी जो यूजी में है 425 सीट्स है, पीजी में आपकी 350 सीट्स हैं। इस बार एनआईडी ने, देखो, एक मेजर रीजन था कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी कर दिया गया था, बहुत ज्यादा लेंदी। मतलब ये था इस बार कि 2 घंटे के एग्जाम में, 3 घंटे के एग्जाम में सॉरी, आपके 6 क्वेश्चंस जिसके सब पार्ट भी दिए गए थे। और रीजन इस बार ये क्यों था, क्योंकि आपका पहले 3 गुना बच्चा सिलेक्ट होता था सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, पहले 3 गुना बच्चा सिलेक्ट होता था, इस बार से क्या करा गया है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड के लिए 1.5 गुना बच्चा सिलेक्ट करा है। तो दिस वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय एनआईडी कि पहले ताकि बच्चा हम कम सेलेक्ट करें आगे राउंड्स के लिए। तो पेपर इटसेल्फ वाज मेड वेरी वेरी लेंथी दिस टाइम। ओके guys, all those kids who are there on the Zoom, can someone please switch to app once and write down or help out your peer students, your classmates, batchmates here to how to join this Zoom? ठीक है, just tell the process. My batches में जाकर बेटा वहां पे आपको Zoom लिंक मिलेगा। ओके। एज लिमिट जो है यूजी में आपकी 20 साल, पीजी के लिए 30 साल, रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का यहाँ पर एग्जेम्पशन है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है आपकी उसके लिए 5 साल का एजुकेशनल क्राइटेरिया 12th, यहाँ पे 12th अपियरिंग आपको होने चाहिए। यहाँ पे कोई सा भी स्ट्रीम का कंपल्शन नहीं है। आप अगर एनआईओएस से भी हैं तब आप ये एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। पीजी के लिए यूजी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन इन डिजाइन, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स और आर्किटेक्चर में आपका यूजी होना चाहिए। ओके। बट रिसेंटली, ठीक है, फीस जो है यहाँ पे 4.5 लाख ईयरली अप्रोक्स है। ठीक है, ये आपकी बढ़ भी सकती है। अपियर्ड स्टूडेंट्स 15,000 के आसपास बच्चा यहाँ पे एग्जाम देता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई बार इसमें नहीं है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से मैं इसको बोलूंगी कि ये एग्जाम आपका डिफिकल्ट है। मेंटली
हम अभी से प्रिपेयर होकर चलेंगे कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा लेंथी है। ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट जो है वो आपका 8 से 10 लाख, लेकिन अगर आपने कॉल देखो, बट ऑब्वियस चीज तो हमेशा होती है कहीं ना कहीं पर। अगर आपने कॉलेज में अच्छा नहीं करा, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बना है, तो जी आपका कम प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है। बट उसके लिए क्या है, कॉलेज में अगर आपने अच्छा नहीं करा है, काम अच्छे से नहीं करा है, तब आपका प्लेसमेंट थोड़ा नहीं होगा या फिर बहुत ही कम पैसों पर होगा। तो मेहनत यहाँ के साथ साथ आगे करनी भी जरूरी है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। निफ्ट में आपकी पहले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं यूसीड के बारे में। बेटा वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप एज वेल। ठीक है। नहीं नहीं, यूसीड के लिए आपको अभी तक जो अभी तक का क्राइटेरिया है, इस साल तक का पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, ना ही निफ्ट में चाहिए। इस बार हो सकता है एनआईडी में पूछ लिया जाए। आई हैव यूजी एनिमेशन, एम आई एलिजिबल फॉर पीजी? यस यस, यू डेफिनेटली आर। पोर्टफोलियो मैं आगे 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 आने वाली क्लासेस में उसको बताते रहूंगी। ठीक है। जूम बार बार बैग हो जा रहा है। देखो, जो देसी सोल्यूशन क्या होता है कि हम जाएंगे अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर और उसको एक बार अपडेट करके देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं यूसीड। भाई ड्रीम कैंपस बन गया है ये हमारा। देखो, अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप नॉच है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको काउंसलिंग भी देना चाहती हूँ कि टैग के पीछे मत भागिए। कि हमने हमेशा ये सुना है कि आईआईटी जो है वो बीटेक में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो हम यूसीड के पीछे भागते हैं। जब हमारे पेरेंट्स को भी पता चलता है कि अरे यूस ये अपने आईआईटीज में आपका डिजाइन है, तो दे आर लाइक ओके सरप्राइज्ड एंड दे आर एक्साइटेड इनफ टू सेंड अस टू दैट कोर्स एज वेल। बट हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कॉलेज में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा जाएगा। यस डेफिनेटली, बहुत कम सीट्स हैं तो क्रीम लेयर भी यहाँ पर जाती है, तो कंपटीशन भी इसका बहुत हाई है, तो बच्चा यहाँ से जो निकलता है बहुत अच्छा डिजाइनर बन के निकलता है। लेकिन अपना एम अच्छा डिजाइनर बनने के लिए रखिए, कॉलेज के टैग के पीछे मत भागिए। इसको ध्यान में रखना, हमेशा आगे बहुत काम आएगा आपके। ठीक है। डिसिप्लिन जो हमारे रहेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन, एनिमेशन डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, मोबिलिटी एंड व्हीकल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एज वेल। सीट्स जो हमारी रहेंगी यूजी में 225 सीट्स रहेंगी, जिसमें कि आपकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सीट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। यूजी के लिए आपकी अपर एज जो है 25 साल रहेगी। इफ यू आर बिलोंगिंग टू द एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो आपकी यहाँ पर अपर एज जो है वो 30 साल रहेगी। एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है 12th या फिर 12th अपियरिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपने मान के चलिए 2026 में एग्जाम दिया है, तो आप जो है अगला अटेम्प्ट अगर आप देंगे, ठीक है, तो 2027 में ही देंगे। आप बीच में कोई गैप नहीं रख सकते हैं। For UG, 12 pass appearing with any stream but IIT Guwahati. IIT GM takes only science students. यहाँ पे कुछ आईआईटीज ऐसे हैं, देखिए कुछ आईआईटीज हैं जिसमें कि आपके स्ट्रीम कोई भी चल जाता है, बट देर आर अ फ्यू आईआईटीज विच रिक्वायर ओनली एंड ओनली साइंस स्टूडेंट्स ओवर हियर। नहीं, यूसीड में मैथ्स जो है वो जेई लेवल की नहीं आती है। यूसीड का मैथ्स बेसिक आपका 10th वाला 12th वाला मैथ्स होता है। बट क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, वहां पर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी एज एन उसको ना बहुत ज्यादा मोल्ड या मोड़ दिया जाता है। ठीक है। यू आर एन एक्टर, ग्रेट वर्क। हाँ, विच मूवी बेटा?
पेपर लैंग्वेज ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। यूसीड में कोई इंटरव्यू अभी तक नहीं होता है इन योर यूजी एग्जाम। फीस आपकी लगभग 3 लाख के आसपास रहती है, ठीक है। अपीयर्ड स्टूडेंट्स, इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल बच्चा और ज्यादा एग्जाम देगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सिर्फ यूजी के लिए 2 बार इसका एग्जाम दे सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट प्लस प्लस, या फिर मैं डिफिकल्ट प्लस यहां पर बोलूंगी। प्लेसमेंट जो आपका होता है वो 14 से 16 लाख, बट यहाँ पर अगेन देयर इज अ बट, अगर कॉलेज में आपने अच्छा नहीं करा है तो इससे कम का प्लेसमेंट आपका रहेगा। मैं मोटा मोटा यहाँ पर बोलूं तो 5 से 8 लाख का यहाँ पे आपका फर्स्ट फोर्थ ईयर के बाद प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, पेपर पैटर्न फॉर बीडेस। रिटन एग्जाम कैट आपका 33.3%, गैट आपका 66.66%। कैट में आपके अभी तक 2 क्वेश्चंस आते हैं, गेट में आपके पिछले साल तक 59 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ये एग्जाम आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ये पार्ट आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। नहीं बेटा, निफ्ट यूजी में इंटरव्यू नहीं है। चलिए, मैं आई विल बी addressing your questions as well, but let's go through this one. नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए में यहाँ पर यूसीड में होती है। एनएटी आएगा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अपना कीबोर्ड यूज करके आंसर अपना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, नंबर टाइप करने होते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आता है आपका एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें एक या एक से ज्यादा आपके आंसर सही होते हैं। इसमें पार्शियल मार्किंग होती है, मतलब कि आपका अगर आपने एक भी नेगेटिव मार्क कर दिया तो आपका नेगेटिव मार्क, अगर आपने पार्शली उसको सही करा है विदाउट गिविंग एनी नेगेटिव आंसर, तो यहाँ पे आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाती है, ठीक है। एमसीक्यू आपका होता है जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग, एक आंसर सही होता है जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। ओके, अभी तक इसमें कोई डाउट? एनआईडी में नहीं है बेटा नेगेटिव मार्किंग, निफ्ट में है। निफ्ट में पहले पार्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एमएसक्यू क्या होता है? एमएसक्यू में आपका ए बी सी डी ऑप्शन होगा। इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपका जो आंसर है वो एक या फिर एक से ज्यादा सही हो सकता है। मान के चलिए ए और बी सही है, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या किया, आपने बी मार्क करा है खाली, तो आपको पार्शियल पॉजिटिव मार्किंग मिल जाएगी। अगर आपने एक भी नेगेटिव नेगेटिव आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करा, जैसे कि बी और सी आपने कर दिया, ठीक है, तो आपका यहाँ पर पूरा पूरा नेगेटिव मार्क्स आपको मिलेंगे। देयर वोंट बी एनी पार्शियल मार्किंग इन दिस वन। ओके, एनआईडी यूजी के लिए देखो इस बार इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट उन्होंने बोला, ठीक है, बट ये नहीं लिखा कहीं पे कि आपका इंटरव्यू होगा, आपका पोर्टफोलियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो वी आर अज्यूमिंग कि हो सकता है पोर्टफोलियो मांग लिया जाए, क्योंकि पहले भी, ठीक है, कुछ टाइम पहले तक 2016-15 तक पोर्टफोलियो आपका एनआईडी यूजी में मांगा जाता था। तो हो सकता है कि वो पैटर्न लेकर आ रहे हैं वापस, एंड दे आर लुकिंग फॉर द पोर्टफोलियो। कैट इज योर बेटा सीडीएटी, जिसमें आपका ड्राइंग होता है वो पार्ट, ठीक है। गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये होता है। मैम, इज वन डे इन वन डे हाउ मच टाइम इज एनफ फॉर निफ्ट प्रिपरेशन? देखो बेटा, हर बच्चा ना उसका पेस एक अलग होता है। मैं बताती हूँ, कभी भी हमने एक वो स्टोरी पढ़ी है ना कि खरगोश और कछुए वाली, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, चलो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो जो भी था था, कछुआ और खरगोश की यहाँ पे रेस कभी हो ही नहीं सकती है। तो
हम ये देखेंगे कि हमारा जब तक हम एग्जॉस्ट ना हो जाए, हम अच्छे से कितनी देर तक बैठकर तैयारी कर पा रहे हैं, मे बी 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। आप टॉपिक वाइज लेकर चलिए कि आपको एक दिन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक वो कवर करने हैं, लाइक दैट। नहीं नहीं, घर से नहीं करना होगा। जैसे बेटा यहाँ पे ना क्या होता है कि आपके सेंटर्स होते हैं। जैसे आयोन और इॉन सेंटर में जनरली आपका यूसीड का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप सेंटर पे जाते हैं, वहां कंप्यूटर आपके रहते हैं, वहां पे कंप्यूटर पे आप अपना अपना पेपर देते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए आपको एक बुकलेट दे दी जाती है। ठीक है, बुकलेट में आप क्या करते हैं, बुकलेट में यू स्केच आउट समथिंग एंड देन दैट इज हाउ योर एग्जाम हैपेंस। Yes, yes, you definitely can crack the exam, NIFT exam along with the boards. यूसीड के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। स्टूडियो टेस्ट और सिचुएशन टेस्ट, ये दो चीज मैंने मेंशन करी यहाँ पर, जो कि आपका निफ्ट और एनआईडी में होता है। निफ्ट में आपका सिचुएशन टेस्ट होता है बेटा, एनआईडी में आपका स्टूडियो टेस्ट होता है। अब होता क्या है यहाँ पे ना, एग्जामिनर आपका मटेरियल हैंडलिंग देखना चाहता है। मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि आपको 3D मटेरियल दिए जाएंगे। ठीक है, आप देखो फ्यूचर में जाकर कॉलेज में ये मटेरियल के साथ ही काम करने वाले हो, चाहे आप अगर कम्युनिकेशन डिजाइन में जाएं, टेक्सटाइल डिजाइन में जाएं, प्रोडक्ट डिजाइन में जाएं, आप मटेरियल के साथ ही खेलने वाले हैं। तो दे वांट टू चेक कि आप मटेरियल के जरिए से कितने सेंसिबल हैं या मटेरियल के लिए कितने सेंसिबल हैं, आप मटेरियल को किस तरह से हैंडल करने वाले हैं। तो इसमें आपसे मटेरियल प्रोवाइड करके आपसे 3D मॉडल बनाने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे मैं अगर अपने टाइम का बताऊं, जो कि एनआईडी का एग्जाम था, उस टाइम पर मेरे क्वेश्चंस में क्या आए थे। सो पेपर दे दिए गए थे, स्क्वायर स्टिक्स बॉल्स दे दी गई थी, ओएचपी शीट्स दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद बोला एक ड्रैगन फ्लाई का इमेज दे दिया गया था। उसके बाद बोला गया था कि इस ड्रैगन फ्लाई से इंस्पायर्ड आपको जो है एक फ्लाइंग व्हीकल का मॉडल, छोटा मॉडल प्रोटोटाइप आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3D मॉडल्स बनते हैं। उसके बाद टेराकोटा क्ले दे दी गई थी आपको, एक इमेज दे दिया गया था माउस का हु वाज होल्डिंग अ कैमरा। उसको देखकर आपको एक टेराकोटा क्ले को यूज करके माउस बनाना था। दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट ओवर हियर। पोर्टफोलियो के लिए मैं थ्रू आउट, ठीक है, अभी हमारे पास ये जो टाइम है, थ्रू आउट मैं गाइड करते रहूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से एडवाइस कर रही हूँ बच्चों, प्लीज अगर कोई भी डाउट है क्लास में, आस्क द क्वेश्चन व्हाई। अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ या फिर कोई अगर लेट्स से ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, उसका मैकेनिज्म नहीं समझ में आया है, फील फ्री टू आस्क। जब तक समझोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। ठीक है, ओके। निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट में, ठीक है, निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट में बोल दिया जाता है कि आपको एक वर्क प्लेस बनाना है आर्टिस्ट के लिए, आपको या फिर यहाँ पर ट्रॉफी बनानी है फॉर XYZ पर्सन। ठीक है, इस तरह के निफ्ट में आते हैं। निफ्ट के जो सिचुएशन टेस्ट के क्वेश्चंस है, दोज आर मोर ऑफ योर एस्थेटिक या ब्यूटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एनआईडी के जो है वो मोर ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडियो टेस्ट में। यस यस बेटा, कंप्यूटर्स रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पेन पेपर पेंसिल वाटर बॉटल और खुद को लेकर जाना है। ठीक है, और कलर्स, बाकी जितना भी चीजें हैं, जो बुकलेट है, जो कंप्यूटर है, वो रहेगा सेंटर पे। यस निरोतिमा, यू कैन डू दैट। UC'd preparation along with 12th board science stream. Do you have biology or maths with you? मैथ्स है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर सजेशन दूंगी सब बच्चों को, जितने बच्चे भी यहाँ पर यूसीड के लिए, मेनली यूसीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज
PYQs करते रहिए, ठीक है। मैथ्स अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं पर दैट 12th का मैथ्स विल टेक केयर ऑफ योर मैथ्स ओवर हियर, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस बहुत ही तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं, होता बेसिक ही है, आपका ज्योमेट्री ही होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। शुरू से आदत डालिए कि PYQs, जैसे अगर हमने कोई टॉपिक आपको करवाया, ठीक है, PYQ खोलिए, देखिए कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है एंड सॉल्व दैट। पेपर में काम तो कर सकते हैं ना, रफ वर्क एंड इन ऑल सेंटर ऑफ यूसीट आपको रफ शीट्स मिलेंगी वहां पर, डोंट वरी। क्रिएटिविटी और एक्यूरेसी बोथ गोज हैंड इन हैंड। डू दे स्टिल आस्क टू मेक 3D मॉडल्स? यस बेटा, अभी भी NID स्टूडियो टेस्ट तो करवाता है। फ्रॉम विच डे? आफ्टर योर थर्ड और फोर्थ क्लास, ठीक है। इसके बाद जो 2 क्लासेस मेरी होने वाली हैं वो थोड़ी थ्योरी बेस्ड होने वाली हैं। आपको लगेगा कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, ये वो, लेकिन वो क्लासेस आपकी बेस रहेंगी, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं आगे अपना कोई भी किसी भी चीज को स्केच करने के लिए, वो प्रिंसिपल्स हमारे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वहां से यूज होते हैं, ठीक है। तो 3 या 4 क्लास के बाद जो आपके टॉपिक्स होंगे वो करिए, उसके बाद PYQ के क्वेश्चंस उठाइए एंड देन सॉल्व इट। शुरू से अगर ये आदत डालेंगे तो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन? गुड क्वेश्चन। हम्म, आई विल टेल यू समथिंग, मतलब बहुत ही ना फिलोसफी यहाँ पे हो जाएगी। आ, देखो, एवरीथिंग इज एक्चुअली डेस्टिन्ड, है ना, सब कुछ डेस्टिनी हमारा, हम तो बस यहाँ पे वी आर जस्ट प्लेइंग द रोल ओवर हियर। बट अगर कहा जाए मोटिवेशन के बारे में, द एंड गोल, द एंड गोल इज दैट मछली का तीर, ठीक है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है वहां पर, उस कॉलेज में, राइट। ये सारा अभी जो हमारे पास फोन है, रील्स है, इंस्टाग्राम है, ये सब आ जाएगा, और ये सब अगर आप उस कॉलेज में या फिर अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना, उस टाइम पे यूज करने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी के लिए 1 साल की ही बात है, थोड़ा हम यहाँ पे इन सब चीजों से, ये बस हमारा लग्जरी वाली चीजें हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे कहीं पे काम आ रही है, तो इससे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग 1 साल के लिए। उसके बाद तो कॉलेज में जाकर वंस यू गेट देयर यू विल रियलाइज व्हाट ब्यूटीफुल जर्नी दिस इज। नहीं, यूसीड में आपको पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करना होता है। आप चारकोल पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी मत करिए। रीजन बीइंग कि फिक्सेटिव आप नहीं लेकर जा सकते हैं वहां पर। तो बंडल्स जब बनते हैं कॉपी के तो आपका स्केचेस छप जाते हैं, ठीक है। आई विल बी टेकिंग द डिजाइन। यस, NID में हम पेन्स, फाइन लाइनर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर मैं अच्छे डिजाइन कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं, तो एक तो सबसे पहले आप स्ट्रीम देखिए अपना, ठीक है, कि आप कौन सा डिजाइन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छे कॉलेजेस में आपका IIT, NID और निफ्ट, ये 3 कॉलेजेस आते हैं। इफ डिजाइन इज ऑफ लोअर लेवल तो फिर आप थोड़ा बाद में करिए बेटा। प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट, राइट। ओके, अब सिंस दिस इज योर फर्स्ट क्लास, एक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज दे रही हूँ। दिस इज योर वार्म अप एक्सरसाइज और ये हर बच्चा करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू किड्स आर गोइंग टू डू, यू किड्स विल पेस्ट अ न्यूज़पेपर ऑन द वॉल। अगर न्यूज़पेपर वॉल पर नहीं पेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कीप इट ऑन अ टेबल। होल्ड योर पेंसिल फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। पेंसिल पर प्रेशर कम, सेंटर से हम पेंसिल को पकड़ेंगे, प्रेशर हम अपनी पेंसिल पर कम देंगे। उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द स्ट्रेट लाइंस,
ठीक है। वंस यू डू 4 और 5 पेजेस ऑफ दिस, प्लीज ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा ये करो आप। उसके बाद आप लोग करेंगे एलिप्सिस। दीज आर योर एलिप्सिस। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, पहले ही लाइन तो कोई भी बना सकता है ना, व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू डू द एलिप्सिस एंड द लाइन ड्राइंग हियर। शीट में भी कर सकते हो, यस, बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर पर क्यों एडवाइस कर रही हूँ, एक तो पेपर हमारे यूज हो जाएंगे, न्यूज़पेपर भी, ठीक है, प्लस आपके पास जो एरिया आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा टू मूव योर हैंड। ठीक है, यहाँ पर हम अपने हैंड को ट्रेन कर रहे हैं, दिस इज ट्रेनिंग आवर हैंड टू गिव और इम्प्रूव द लाइन क्वालिटी। अभी क्या होता है, आप लोग आगे देखेंगे कि हम जब स्केच करते हैं ना, तो स्केचिंग में हमारा वी हैव दीज टाइप ऑफ broken lines, right? This type of line qualities show that the person is anxious when they are sketching and they are not very confident enough when they are sketching. तो आज मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूं, और ये हम थ्रू आउट ये 1 साल पूरा करेंगे। जब भी हम स्केचिंग करने बैठेंगे उससे पहले लगभग 1 पेज हम लोग लाइन अपने हाथ का, दिस इज लाइक अ वार्म अप एक्सरसाइज फॉर आवर हैंड एज वेल, सिर्फ लाइंस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस। आई टेल यू आई टेल यू समथिंग, जब व्हेन वी वेंट टू कॉलेज, राइट, कॉलेज में हमारा 1 हफ्ता सबसे शुरू का जो था वो फाउंडेशन था, फ्री हैंड स्केचिंग ही था। उसमें इनिशियली जो हमसे करवाया गया था A3 शीट्स, उसमें सिर्फ लाइंस बनवाई गई थी। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज थी, 1-1 सेंटीमीटर छोड़कर आपको लाइंस बनानी थी। इससे क्या हो रहा है, आपका ना यहाँ पर हैंड मूवमेंट पर एक यहाँ पर आपका पूरा ग्रिप बन रहा है, ठीक है, हाथ के मूवमेंट पर आप यहाँ पर अपना एक ग्रिप बना पा रहे हैं, आप हाथ को कंट्रोल यहाँ पर कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ट्राई करो रोज करने का, दिस इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव द लाइन क्वालिटी एज ओनली ओवर हियर। एक बार, अब मैं फटाफट से जो अभी आपका स्केचिंग आपने कुछ भी किया है, क्विकली सेंड इट टू मी सो दैट आई कैन डिजाइन द फर्दर कोर्स अकॉर्डिंगली। हाउ टू डिसाइड कौन से एग्जाम पर प्राइम फोकस होना चाहिए, आई विल टेल यू। इस कोर्स में आगे जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो जिस तरह के हमारे चैप्टर्स आएंगे यू विल सी कि किस चैप्टर में आपका सबसे ज्यादा मन लग रहा है। आई टेल यू, जैसे पैटर्न डिजाइन में है, फैशन डिजाइन में है, और उसके अकॉर्डिंग दैट इज द प्राइम थिंग, दैट इज द की स्टेप दैट यू शुड सी कि ओके NID निफ्ट या यूसीड कौन सा मेरे लिए सही है। The free batch on PWYT channel, which is there, that is for the students who are appearing अभी के एग्जाम के लिए, ठीक है, तो to help them out for the revision as well, तो उसके लिए वो बैच वहां पे लाया गया है। Yes, the speed and the quality both are really important. Okay. अब एक बार मैं इंग्लिश का कोर्स बता देती हूँ, ये मेजरली आपका निफ्ट एग्जाम में आता है, NID ने तो इस बार गैट नहीं दिया था, बट हो सकता है अगली बार आ जाए। NID भी आपका गैट देता है, वोकैबुलरी इसका आपको PPT मिल जाएगा, ठीक है, रीडिंग पैसेज, देन वी हैव द ग्रामर, ग्रामर में आपका रहेगा एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, डिजाइन ड्राइंग, ठीक है, ये दीज आर जस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स
हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। इसमें आगे आगे हम और एड ऑन करते रहेंगे। पैटर्न मेकिंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इंडियन मोटिव्स, इंडियन टेक्सटाइल्स, फैशन डिजाइनिंग, ह्यूमन अनाटमी, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, logos, mascots, poster design, banner design, inspiration drawing for your accessory bag, apparel, textile, color design, color concepts, color and mood, logos, pictograms. उसके साथ साथ एग्जीबिशन डिजाइन और ऐसी चीजें भी हम लोग आगे करने वाले हैं। अब आती है बात कि हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर समझाती हूँ। मान के चलो आपको एक प्रॉब्लम दी गई कि एक एल्डरली पर्सन है, उसके लिए आपको बॉटल बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप विच यू आर गोइंग टू थिंक एट और थिंक ऑफ? फीचर्स, ओके। shouldn't be heavy, easy to hold, good grip, easy to pick और easy to hold, good grip, ठीक है। इमेजिन, इजी टू कैरी। हम लोग ना अब यहाँ पर सब हम लोग यहाँ पर अब एकदम से कूदने लगे हैं किस पर कि यहाँ पे आंसर देने के लिए, डिजाइन सोल्यूशन ढूंढने के लिए। बट उसके पहले बच्चे, सबसे पहले प्रॉब्लम तो समझो। जब तक प्रॉब्लम्स ही पता नहीं होंगी तब तक सोल्यूशन किसका दोगे? टेल मी, एल्डरली पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? शेकी हैंड्स, यस। यहां से आपका सोल्यूशन आएगा। And this comes in your brainstorming, finding the problems, finding the possible solution for those ones. This is the first step, and this is called understanding your consumer, understanding your customer, understanding your user. जब तक यूजर को आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक उसकी प्रॉब्लम्स को आप नहीं समझ पाएंगे, आप क्या डिजाइन करोगे? है ना? तो पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद सोल्यूशन पे हम जाएंगे, राइट? चलो, शेकी हैंड्स, अर्थराइटिस। उसके अलावा विजन प्रॉब्लम, यस। अल्जाइमर्स, ओके। ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। लो स्ट्रेंथ, ग्रेट। अब ये सब हमने जो करा है, ठीक है, हमने यहाँ पर वी आर बीइंग एम्पेथेटिक। एम्पैथी मतलब अपने आप को उस पर्सन की जगह रखकर सोचना। डिजाइनर सबसे पहले एम्पेथेटिक होना चाहिए। जब तक वो अपने कंज्यूमर यूजर को नहीं समझेगा, वो एक अच्छा डिजाइन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। दिस इज कॉल्ड योर एम्पैथी। You are empathetic towards your consumer, towards your user over here. अब जब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई हैं, आप इसको एड्रेस करके, आप इसको यूज करके अपना सल्यूशन यहां पर देंगे, ठीक है। डिजाइन वन और डिजाइन टू में डिफरेंस क्या है? आई टेल यू।
सो बेसिकली डिजाइन 1 और डिजाइन 2 आपका अलग अलग दिन होने वाले हैं, ठीक है। सो द नेमिंग इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर दैट केस ओनली, वी कुडंट हैव गिवन डिजाइन 1। अगर दोनों दिन के लिए हम डिजाइन 1 रखते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते यहाँ पर कि अच्छा ये इस दिन था, ये इस दिन था, कौन सा हमारा किस दिन टॉपिक हुआ है, ठीक है। प्लस फॉर इनिशियल डेज डिजाइन 1 विल ऑल्सो बी टेकन बाय 2 फैकल्टीज ऑफ योर्स, ठीक है। अब जब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसके बाद हम सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे कि हमारा ग्रिप यहाँ पर कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रिंकिंग मैकेनिज्म हम लोग कैसे देखेंगे। अगर कोई भी एल्डरली पर्सन इज लिविंग अलोन, ठीक है, तो उसके लिए वहां पर वो ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म कैसे हो ताकि वो आसानी से उसको धो सके, राइट। अगर उसको दवाइयां लेकर जानी है कहीं पर तो वो उसको कैसे, क्या हम उसमें एक सेपरेट कंपार्टमेंट यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखकर इसको देखकर अपना आंसर बनाएंगे। चलिए, एनी अदर डाउट गाइस? अर्थराइटिस मीन जोड़ों का दर्द। यूसीड में साइंस स्टूडेंट्स को फायदा है क्या? फायदा कैसे है कि आप हर कॉलेज के लिए, वहां पर हर आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा, प्लस अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं पर ये फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके, व्हाट माइंडसेट do top scorers maintain during pressure heavy questions? The mindset is basically understanding the problem, going or deep diving into the problem, and then pulling the solution out for that question. That is the only strategy a designer can have. ज्यादा टेक्नोलॉजी यस नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी यूजर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन डिजाइन 1 एंड डिजाइन 2 दैट आई हैव टोल्ड ओवर हियर अभी थोड़ी देर पहले बेटा। एक और चीज, एक क्वेश्चन आया था एनआईडी के इंटरैक्शन डिजाइन मास्टर्स में कि आपको ना एक कैलेंडर डिजाइन करना है फॉर अ एल्डरली पर्सन, जिसमें कि आप डेट, डे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, टेम्परेचर, ये सब बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हम एल्डरली पर्सन के लिए कलर्स, फॉन्ट्स और जो हमारा यहाँ पर इंटरैक्शन इंटरैक्शन एज इन जो इंटरफेस सॉरी होगा, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली, ठीक है। नंबर ऑफ बटन्स कम रखेंगे हम लोग, प्लस थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा रखेंगे, बोल्ड फॉन्ट्स, कलर्स ज्यादा ब्राइट नहीं होने चाहिए फॉर देम, राइट। यस कनक। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून बेटा। मैम जैसे आपने अभी जो डिज़ाइन बताया बॉटल का कि आप ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैम इसमें हम अपना डिज़ाइन अलग दिखाने के लिए क्या करें? क्योंकि सब बॉटल्स एक ही विजन से बनाएंगे कि हाँ, मतलब जो नॉर्मल बॉटल दिखती है वैसे ही हम बॉटल्स बनाएंगे, तो हम क्या करें अलग कि हमारा अलग तो दिखे? हाँ, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कनक आउट ऑफ द मार्केट या फिर आउट ऑफ बॉक्स तो सोल्यूशन हम देंगे ही देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके हम लोग या करें ताकि प्रॉब्लम हमारी झट से सॉल्व हो जाए। सोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स जो होंगे ना बेटा, जैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे मान के चलिए कि पानी पी रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे एक हैंडल मुझे लगाना चाहिए, स्ट्रैप लगानी चाहिए ताकि वो पर्सन उसको आराम से पी सके। अब ये तो रहा बॉटल के डिजाइन का बात, उसको हम कैरी कैसे करेंगे बताओ, ठीक है। अब
अगर मेरे पर्सन को यहाँ पर अल्जाइमर्स प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स मतलब कि वो भूल जाता है, तो मैं उसको ये कैसे, आई विल मेक श्योर कि वो अपनी बॉटल को जगह जगह पर नहीं भूले। क्या मैं वो बॉटल उसके स्ट्रैप में जो उसके स्टमक पे अटैच रहेगा वहां के लिए लगाऊंगी? तो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग योर डिजाइन अ लिटिल बिट डिफरेंट बाय थिंकिंग एक्स्ट्रा ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ओवर देयर। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन आर्ट्स? बेटा फाइन आर्ट्स में आपको ना फाइन आर्ट्स पढ़ाई जाएगी। फाइन आर्ट्स में क्या होता है, जैसे आपका ह्यूमन अनाटमी, शेडिंग, कलरिंग, ये सब सिखाया जाएगा। डिजाइन वाले पार्ट में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट्स में आपका कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, या फिर आपको इसको बना के कैसे दिखाना है, सीन क्रिएशन कैसे होगा, दिस ऑल विल कम इन योर डिजाइन पार्ट। दर्शिका, सबसे पहले व्हाट आई शुड रेगुलरली डू दैट मोस्ट एस्पायरेंट्स डोंट? सबसे पहले तो चैट जीपीटी से क्वेश्चंस नहीं छापने हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंडली, कीप योरसेल्फ काम, कंपोज्ड, एंजॉय दिस प्रोसेस। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन ओवरवेल्म नहीं होना है, एंजॉय द होल जर्नी, राइट? तभी आप अच्छा, देखो एक होता है हमारा ना डिजाइन ब्लॉकेज आ जाता है जब हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं, शायद से आइडियाज आने कम हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे लेकिन प्रेशर में भी अच्छा काम करते हैं। तो अपने आप को कंपोज रखना है, काम कर रखना है, और दिस जर्नी इज अबाउट द एंजॉयमेंट एंड लर्निंग रादर देन जस्ट प्रेशराइजिंग योर सेल्फ थ्रू आउट। यस, 2015 का PYQ का गैट पोर्शन में डाउट था। व्हाट वाज दैट? NID और एंड सीड प्रतीक, दोनों दोनों बेटा। बेस्ट मीडियम ऑफ कलर्स, I personally suggest pencil colors and your पेस्टल्स, सॉफ्ट पेस्टल्स एग्जाम के लिए। बट अगर आप वैसे सीखना चाह रहे हैं तो आप देखिए आपको किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है यूज करने में। आई रियली एंजॉय डूइंग द इंक्स, कलर्ड इंक्स। ठीक है, लार्जर क्लियर डिस्प्ले, सिंपल ऑपरेशन, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स कैन बी डन। बेटा ऑटोमेशन इतना ज्यादा दोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा एल्डरली पर्सन उसको यूज करने में। Screen bright in a day, that is a good add-on. Answer is 11, but the answer is 14. Fourth question. Okay, let me have a look. Of alphabet from A to Z, how many of these letters is flipped along the horizontal axis? Horizontal axis आपका ये होगा, ठीक है। B, एक दो, can be flipped along the horizontal axis, can still be read as capital letters। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 14। शांतनुज, सॉरी, हु आस्क्ड द क्वेश्चन? इट्स 14 ओनली बेटा, बहुत सिंपल है ये वाला। देखो, कैन, इसमें लास्ट पढ़ो, एंड कैन स्टिल बी रेड एज कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हमने ए को फ्लिप किया तो ये वी बन जाएगा, राइट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तभी तो हम वी की तरह इसको पढ़ पाएंगे ना। ए हो गया हमारा, बी हो गया हमारा,
देन वी हैव दीज 2 लेटर्स बी के पास 1 2 3 4, फिर 5 और 6 ई एन एफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, H 7 I 8, देन K, देन L के ऊपर जो एक अल्फाबेट है वो O, राइट, देन वी हैव U V X एंड W. ये जरूरी नहीं है कि वो सेम ही अल्फाबेट पढ़ा जाए, फ्लिप करके कौन सा अल्फाबेट हमारा पढ़ा जाएगा एज अ कैपिटल लेटर. क्लियर? इजी था ये क्वेश्चन, बस इसमें लास्ट में देयर वाज कंफ्यूजन, दैट्स ऑल. आपका जो ऑटो है ना सौम्या, द ऑटो साइज इज अ लिटिल बिट प्रोपोर्शनेटली ऑफ. चलिए, अगर डेली सिर्फ 30 से 40 मिनट मिले तो उस टाइम को कैसे स्प्लिट करें. यू सी 30 से 40 मिनट तो आई विल से थोड़ा कम है बच्चे. हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना मतलब दिस इज योर हॉरिजॉन्टल वन, दिस इज योर वर्टिकल वन, ऐसे और ऐसे, ठीक है. हमको आइडिया नहीं आ पाते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू बिल्ड द आइडियाज एज वेल. चलिए, with this I am going to wind up the session. I hope you guys enjoyed the class. Since this is a first class with me guys, so I would like to tell कि ये जर्नी ना बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सेल्फ डाउट्स आपके होंगे इस जर्नी में कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं. किसी बच्चे का दूसरा अच्छा काम देखकर लगेगा कि भाई मैं आई एम नॉट डूइंग एनफ और ये सब. बट ट्रस्ट मी, जब तक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, जब तक यू आर गिविंग योर 100%, आपको कोई भी पुल बैक नहीं कर सकता है. एंड लास्टली, इस पूरे जर्नी में, सिर्फ इस जर्नी में नहीं, थ्रू आउट जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज वेल. अगर लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है सब कुछ, टॉक इट आउट, ठीक है. चलिए, with this I am winding up the session. I hope you enjoyed the class. मिलते हैं अगले क्लास में. अगले क्लास में you have to come up with those lines का exercise which I have given to you guys. Bye kids and have a nice day.